वणक्कम शाक्स। कांचीपुरम साड़ी और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्र तमिलनाडु से हम आए हैं। हमारा नाम डॉक्टर श्रीमती के सिंह, फाउंडर सीईओ स्पेस किड्स इंडिया। हमारे ऑर्गेनाइजेशन सैटेलाइट्स बनाती है, फेमटो सैटेलाइट, नैनो सैटेलाइट, क्यूब सैटेलाइट बनाती है, वो भी बच्चों के जरिए। मेरी जिंदगी 3 लफ्जों में कही जा सकती है, स्वॉर्ड टू स्पैटुला टू स्पेस। जिस दिन मैंने स्वॉर्ड परेड किया था, उसी दिन शाम को मुझे ऑफर मिला था आर्मी में भर्ती होने का, लेकिन उसी शाम मेरे नसीब में मेरी शादी लिखी थी, तो स्वॉर्ड से सीधा पहुंच गई मैं स्पैटुला। 16 साल तक एक मामूली सा घरेलू औरत थी। 16 साल के बाद एक मुंबई से एक परी आई थी, मेरी हाथ पकड़ के मुझे बाहर खींची और मुझे एंटरप्रेन्योर का जर्नी शुरुआत किया। मेरा बेबी स्पेस किड्स इंडिया पैदा हुआ। साइंटिफिक एक्सपीरियंशियल लर्निंग बच्चों को देने के लिए नासा, ईसा और जीसीटीसी मॉस्को ले जा रही थी बच्चों को। तो तकरीबन मैंने 3000 बच्चों को मैं ले जा चुकी हूँ। तो बार बार ये नासा और ईसा जाते जाते होश उड़ गया कि हमें भी सैटेलाइट बनाना है, हमें भी रॉकेट बनाना है। तो हमने एक अच्छा सा टीम बनाया और ये टीम बच्चों का था। इंडिया में हमारा एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो 12 बलून सैट और वो 2 सब ऑर्बिटल और 2 ऑर्बिटल सैटेलाइट बनाए। और जब हम बात कर रहे हैं, अभी भी हमारा 2 सैटेलाइट अंतरिक्ष में घूम रहा है। तो शार्क्स, क्यों ना आप हमारे साथ चले और हम अंतरिक्ष में उड़े। इसके लिए हमें 1 करोड़ रुपए चाहिए, उससे ज्यादा आपका साथ चाहिए, क्योंकि हम अभी R&D फर्म से अभी कमर्शियल जा रहे हैं। तो इसीलिए हम 2% का स्टेक दे रहे हैं 1 करोड़ के लिए। जो मेरे चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर और लीड साइंटिस्ट है, वो मेरे साथ आया हुआ है। मैं उसको बुलाऊं प्लीज। Vanakkam Shaks. This is Rifat here. I'm the lead scientist and chief technology officer of Space Kids India. I'm 22 years old. I'm doing my master's in physics and I've been building satellites since I was 14. So here we have our tracking software. We are looking at the global map. So the first one, Kalamsat V2. That is a cube satellite we launched back in 2019. It was a communication satellite. Right now it's chilling over Canada. You know, the second one, the most advanced satellite we have ever built, the Satish Dhawan satellite. Right now it's over Antarctica. I think both are chilling out in cool places. So these are our satellites we built in the past. Now let's look at the future. So this is our dedicated satellites, 3 kg class. And the second one, it is going to be the cool one. I'm very excited about that. We all are aware of Ola Share. It's such a cool concept. Why can't we do that in space? Because satellites are very expensive. Not every institution, not every university can afford it. So the same satellite can be converted into a space taxi where around 5 to 10 different institutions or companies can put their payload and launch that into space. It is going to be never easier before. रफत, ये मेरा बच्चा थोड़ा अंग्रेजी हो गया, तो उसको हिंदी थोड़ी बात नहीं आती है, तो I'm so sorry, I'm learning it. Soon I'll learn it. तुम्हारे पॉकेट में एक चीज है। I think I forgot my, spacecraft in the morning, but then I found out it's in my pocket. It's going to be the lightest spacecraft ever launched into space. मेरे को भी एक दो ना, मैं भी बच्ची हूँ, मेरे को भी I have a lot of that in my pockets. So ये क्या है क्या? This is a kit actually. It has 10 sensors which can monitor various parameters about the space. We ship this to the students. We also conduct a course where they can learn about the space, build their own spacecraft, send that back to us. This is the exciting part. We are going to launch this into real space on a real rocket and provide the data back to the students and provide them the career guidance how they can become real scientists. ये 10 साल के बच्चे से कर सकते हैं। मतलब इंटरेस्ट जो है वो चिराग बचपन से उनको we try to inculcate that. So we are trying our best to do the best for children, students, researchers and industry पैसे के लिए। ये सैटेलाइट देख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। Yeah, sure. Actually, this is a real satellite and it was qualified by ISRO.
इसके अंदर पूरा है और इसका पर्पस क्या होगा? ये कम्युनिकेशन और सैटेलाइट। ये इंडिपेंडेंटली हमारी हाँ, भूमि की yes, चारों ओर घूम रहा है, हाँ, है ना? हाँ। अर्थ का ऑर्बिट कर रहा है, बिल्कुल। लो ऑर्बिट। हाँ जी बिल्कुल। अरे वाह। और ये छोटे और हाँ, मैं दिखाती हूँ। सैटेलाइट्स क्या हैं? ये यहाँ पर क्या है? ये तो रॉकेट्स हैं। हाँ, ये रॉकेट्स हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो हम इधर आए, ये हमको रॉकेट बनाने के लिए आए हैं। सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए। यस। वेरी गुड, थैंक यू, Thank you so much. डॉक्टर, मैं अभी तक कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ आपके बिजनेस के बारे में, तो एक बार पूछना चाहूंगा, हाँ जी। आपका बिजनेस क्या है? ट्रेनिंग का बिजनेस है या सैटेलाइट बेचने का बिजनेस है? पैसे कैसे बनाते हैं आप? ये सारे रेंज के जो सैटेलाइट्स है, ये हमारा बिजनेस मॉडल है। तो ये आप बेचोगे, बेचेंगे। इंडस्ट्री को बेचोगे, गवर्नमेंट को बेचोगे, गवर्नमेंट, लोड एकेडमिया, सबको बेचोगे। सबको बेचेंगे और बच्चों को बनाने भी सिखा के बेचेंगे। तो ये बच्चों से भी आप रेवेन्यू लेंगे, तो ये दो बिजनेस मॉडल हो गए, हाँ। ऐसा बोल सकते Yes, हैं। yes. और ये आपने कब शुरू किया? 2015 में हमारा पहला बलून सैट किया। ये दो वर्टिकल तो आपने बता दिया। हाँ। अभी तीसरा वर्टिकल मैंने ये सुना कि आप रॉकेट्स भी बनाएंगे ये सैटेलाइट को ले जाने के हाँ। लिए। Not too many people are in the market for the suborbital launch vehicles. We have to wait for a long time to launch our payloads. But a lot of students are coming in for which we need to have a higher frequency of launches. So we are like, okay, so let's start manufacturing our own rocket, and it is going good. We'll be soon launching it. आपने कंपनी का नाम सुना है, अग्निकुल? हाँ जी। Yes. वो ऑलरेडी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका है कि छोटे सैटेलाइट को लोड शेयरिंग करके लो प्राइस में कैसे स्पेस में भेजा जाए। तो आपको रॉकेट बनाने की जरूरत ही नहीं है। वो ऑर्बिटल में भेज रहे हैं और वो कम प्राइस, मतलब तो भी एक्सपेंसिव है। नहीं, नहीं, मतलब नहीं, नहीं, 50 लाख 60 लाख ऐसा बिल्कुल होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये जो चीज है 8 लाख 10 लाख 18 लाख में कर सकते हैं, इसीलिए हम सब ऑर्बिटल रॉकेट बना रहे हैं। नहीं, मैं एक इन्वेस्टर हूँ अग्निकुल में। Oh, मैंने really? इन्वेस्ट किया हुआ है वहाँ पे। उन्होंने वही प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहा कि लोग सैटेलाइट भेजना चाहते हैं, हाँ। और आपको बहुत वक्त तक इंतजार करना पड़ता है हाँ। कि पेलोड बड़ा हो जाए। जो आप ओला शेयर की बात कर रहे थे, वहाँ भी बाय द वे आई एम एन इन्वेस्टर इन ओला एज वेल। तो सेम कॉन्सेप्ट वो स्पेस कार्गो में लाना चाहते हैं। Yes, जी. डॉक्टर मीनाक्षी श्रीमती। डॉक्टर हाँ जी। श्रीमती, फर्स्टली आपने आपको बहुत किसका बार नाम पूछा। याद नहीं रहता है? आपसे सीख रहा, आपके साथ हेलो इफेक्ट हो रहा है। सो डॉक्टर आप श्रीमती, मामी बोल सकते हो क्योंकि दैट इज व्हाट वाज कैप्चर्ड। मामी? एक्चुअली What about स्पेस मामी? हम लोग जब सैटेलाइट लॉन्च किए थे, अडोसिटी एक बंदा ने लिखा था कि सारी मामी लॉन्चेस सैटेलाइट इनटू स्पेस। आई सेड क्या यार, इवन अपना अटायर भी इतना कुछ करता है यार। सो आई रियली वांट टू से कि कांजीपुरम साड़ी wearing rocket scientist is very cool. Your enthusiasm and passion for a lot of women like me, it's a big inspiration. ये थैंक यू। आप डॉक्टर हैं तो आपने पीएचडी किया है? हाँ जी। ओके, किस में गुरुकुलम PhD? कॉन्सेप्ट में बच्चों को, अपना एंशिएंट गुरुकुलम कॉन्सेप्ट है ना, अच्छा। माइनस द पेरेंट्स, ओनली चिल्ड्रन। ओके। हाँ शाक। आप हिंदी पिक्चर देखती हैं? हाँ जी। आपने वो देखी है तारे ज़मीं पे? हाँ जी बिल्कुल। तो उसमें वो दरशील सफारी होता है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता ये हो क्या रहा है दुनिया में। हाँ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा वो क्या रहा है। ऑप्टिमल, एडोसिटी, ये वर्ड्स, ऑर्बिटल, मुझे नॉर्मल लैंग्वेज में समझाओ। ये एजुकेशन का प्रोजेक्ट है? मैं समझाती हूँ। नो सब- नो नो साइंस, नो जनरल। बिल्कुल, कुछ डेटास कलेक्ट करने के लिए हमारे लिए ये तूफान आएगा क्यों आ रहा है, ये वेजिटेशन देखना है क्यों है, ये सब चीजों के लिए हमको सैटेलाइट की जरूरत है। बड़ा बड़ा सैटेलाइट, ये रूम साइज का सैटेलाइट होता था, अभी उसको हमने फेमटो मतलब 10 किलो के अंदर नैनो सैटेलाइट, क्यूब सैटेलाइट बोलते हैं। मैं पकड़ के दिखाऊं आपको? हाँ, हाँ, ठीक है। ये छोटा सा पेलोड है, इसको फेमटो सैटेलाइट बोलते हैं। तो ये फेमटो सैटेलाइट हम कंपोनेंट्स इसके अंदर इसको डालेंगे, प्रोग्राम करेंगे और प्रोग्राम करके इसको हम रॉकेट में डालेंगे। ये ऊपर जाएगा मतलब 136 ये तो मुझे पता है ऊपर जाएगा। 136 किलोमीटर्स और 140 किलोमीटर्स तक जाएगा और ऐसा उड़ के नीचे आ जाएगा डेटा कलेक्ट करके। मेरे को अमन की बात पे जा रहा हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने इसको रॉकेट साइंस बना दिया। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, मेरे पास टेलीकॉम कंपनी है, मेरे को सैटेलाइट छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए, और मेरे को क्या फायदा होगा? छोड़ना चाहिए। अभी इंटरनेट कनेक्शन के लिए स्टारलिंक जो 600 सैटेलाइट्स वो पूरा कर रहे हैं ना, Right. तो वो बड़े बड़े सैटेलाइट्स छोड़ रहे हैं। अभी बड़े सैटेलाइट्स के बदले में अभी नैनो टेक्नोलॉजी इतना इम्प्रूव हो गया,
तो नैनो सैटेलाइट्स कर रहे हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए। वो नहीं तो बहुत वो जो ही स्टारलिंक है वो पुरानी दुनिया में रह रहा है कि वो बड़े सैटेलाइट छोड़ रहा है और आप कोई नई दुनिया में आ गए जहाँ छोटे सैटेलाइट से कुछ सॉल्व हो जाएगा। For example, we know OneWeb, right? Right now, Airtel invested in that. So OneWeb, they do the service, but the actual satellite is manufactured by Airbus. So we are like the Airbus. For if you are running a company like OneWeb, you can give the contract to us. We will manufacture it. मैं आपका ना काम इजी कर देता हूँ। ये ना बायजूस वगैरह जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए हैं, जो ऑनलाइन एजुकेशन होती है ना, इनमें ये बहुत अच्छी चीज़ होगी वेयर स्टूडेंट्स कैन लर्न अबाउट व्हाट इज स्पेस टेक। बट ये अगर मैं आपके साथ जुड़ गया ना तो आप मुझे ही समझाते रहोगे कि आप कर क्या रहे हो, और 1 साल तो इसी में निकल जाएगा, तो मैं आपकी ना कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा इसमें। तो मैं इजी कर देता हूँ बाकी शार्क्स के लिए। तो आप प्लीज इनसे बात करिए एंड प्लीज कीप ग्रोइंग एंड कीप सेंडिंग स्टफ टू स्पेस। थैंक यू। मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। ओह थैंक यू मुझे आप बड़ी प्यारी लगी स्पेस मामी, थैंक यू। और आपकी इंटेलिजेंस और आपका पैशन, जुनून Thank you. बड़ा प्रभावित किया। और मैंने इन्वेस्टमेंट भी की है ये एरिया में, तो मैं थोड़ा कुछ जानता हूँ। काफी। वो थोड़ा शो ऑफ में भी बिलीव हाँ, वेरी नाइस वेरी नाइस। करना पड़ता है टीवी में, है ना। 2 प्रश्न हैं। एक बताइए कि लो स्पेक सैटेलाइट का मार्केट साइज क्या है, और उसी से रिलेटेड प्रश्न ये है कि ये स्पेसिफिक कैटेगरी में और कंपटीशन कौन है, आपकी कंपेटिटिव स्ट्रैटेजी, मतलब उससे आगे जाने की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। Low spec satellite marketing is evolving. Companies are still trying to figure out the market size. Our competitors are primarily in Europe and USA. लोगों के सवाल सुनते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ मेरा क्या फैसला। ठीक है। तो डॉक्टर श्रीपति, जैसे अमन ने बोला, ऐसा इसका फ्यूचर शुड बी कि हम एक स्पेस एडटेक कंपनी बनाएं जो एडटेक में बहुत बड़ी बनती है, या फिर हम यूनिवर्सिटीज को सपोर्ट करके उनसे चार्ज करें, या फिर कंपनीज लाइक स्मॉलर कंपनीज हु कांट अफोर्ड, जो एयरबस है, उनको करें। तो मेरे हेड में ये बहुत कंफ्यूजन है। फॉर दैट रीजन मुझे नहीं लगता मैं वैल्यू ऐड कर पाऊंगी, तो आई एम आउट। बट बेस्ट ऑफ लक, वेरी इंस्पायर्ड। थैंक यू। सो मेरे लिए ऑब्जेक्टिव क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। आपके केस में मेरे को ऑब्जेक्टिव ही नहीं समझ आ रहा। आपने उसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते तो शायद मैं इंटरेस्टेड हो जाता, बट इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज में जहाँ मेरे को ही डर लगे कि मैं किस में घुस रहा हूँ, तो मैं नहीं घुसूंगा। अच्छा, थैंक यू। आई थिंक डॉक्टर श्रीमती, आपका ऑब्जेक्टिव काफी क्लियर है। एडटेक आप ज्यादातर एक सोशल गुड के लिए करना चाह रही है। आपका जो रेवेन्यू बनेगा वो इंडस्ट्री से बनेगा। मैं इसलिए आउट हूँ कि मेरा एक्सपर्टीज एडटेक में है, तो मैं इस दूसरे एरिया में ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जैसे कि विनीता ने बताया, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, वुमेन इन टेक्नोलॉजी इस कंट्री में बहुत कम है, उनकी संख्या बढ़ाना 7% बहुत जरूरी है। हाँ जी। तो आप सचमुच एक इंस्पिरेशन है। थैंक यू। Thank you. आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। आपने कहा आपने गुरुकुलम में PhD किया है। हाउ डू यू नो अबाउट स्पेस टेक? वेल, एम्बेसडर स्टेटस मिला था मुझे। मैं कह रही थी नासा, ईसा और GCTC के स्पेस कैंप्स, वहाँ पे एक्सप्लेनेशंस करते हैं कि सैटेलाइट क्या है, रॉकेट क्या है, क्यों छोड़ते हैं, तो पूरे साइंटिफिक डिटेल्स। सो बच्चों के जैसे मैं भी बैठ के ना नोट्स लेती थी, तो पूरा पढ़ के इतना लेकिन इंस्पायर वैसे तो वो कंसेप्चुअली समझ में आ जाएगा आपको, उसमें आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है। ये सही बात है। हाँ, बिल्कुल सही है। तो आपका टेक्निकल चैंप कौन है? ये है? हाँ, अच्छा, लेकिन ये तो अभी सिर्फ 22 साल के हैं। लेकिन हम प्रूव कर चुके हैं। तो आप इनको पे करते हैं? हाँ जी। If you are investing, you can trust me and you can trust my expertise in lower end technologies and lower end satellites, and I'll make sure your investment. देखिए will come यहाँ back. पर क्या है ना, ये मंच ऐसा है, हमको बहुत जल्दी डिसाइड करना पड़ता है जो हम यहाँ देखते हैं। Yes, जी। तो मेरा भी फैसला बन रहा है। देखिए, मैं बहुत प्रभावित हूँ आपसे। स्पेस मामी, आपसे मिलके बहुत बहुत खुशी हुई। आप इतनी बबली है, मजा आ गया। थैंक यू। लेकिन आप जो इंडस्ट्री में खेल रहे हैं ना, वो बहुत मुश्किल इंडस्ट्री है, और आप जो सेगमेंट में जा रही हैं वहाँ पे रेवेन्यू बहुत कम है, यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये इंडस्ट्री में आपको बहुत दूर तक कामयाबी मिल सकती है। मैं बाकी सबसे सहमत हूँ कि शायद यहाँ पर स्पेस टेक, एडटेक कंपनी अच्छी बन सकती है। उस बारे में आपको सोचना चाहिए। ओके। आप स्पेस से फैसिनेटेड हैं, लेकिन आप खुद क्वालिफाइड नहीं हैं इस मामले में। आई एम सॉरी, इस वजह से मैं आज के लिए आउट हूँ। अच्छा, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू Thank you. थैंक यू सो Thank you मच। so much. थैंक यू, आपने थोड़ा साइंस हम जैसे कॉमर्स वालों को सिखाया। थैंक यू। थैंक यू।